इसका मतलब أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر. الحمدللہ ہم نے مرکب جاری پڑھے، مرکب اضافی پڑھے، مرکب اشاری پڑھے. آج ہمارا آخری مرکب ہے، باذن اللہ ہم جو ہے یہ بھی اچھی طرح پڑھیں گے. یہ ہے مرکب توصیفی. مرکب توصیفی میں آپ کو ایک چیز، بنیادی پہلی چیز بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم لکھ جائیں. مرکب توصیفی کا مطلب ہے، توصیفی میں ایک آواز آ رہی ہے صفت. توصیفی میں دو جز ہوتے اور یہ کمپلسری ہے. ایک اسم آنا ضروری ہے، جس اسم کے اچھی یا بری کوالٹی پر ہم معلومات دیتے ہیں اس کو صفت کرتے ہیں. کسی بھی اسم ہونا ضروری ہے. کوئی اسم ہونا، وہ ہوگا موصوف. یہ نام کیا ہے؟ موصوف. موصوف کا مطلب ہے کوالٹی والی شخصیت. کیا ہے؟ کسی کو بولیں گے وہ موصوف سے ملے، یعنی کہ وہ عام طور پر اچھی کوالٹی کا سب. موصوف کا مطلب یہ نہیں کہ اچھی کوالٹی، سم ون وتھ سم کوالٹی. تو میں ایک دم بنیاد سے چلنا چاہوں گا آپ کو، اور یہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے یہ آپ کو بڑا باریکی میں بتانا چاہوں. ٹھیک ہے؟ تھوڑا بہت میں انگریزی کا بھی سہارا لے لوں گا. تو سب سے پہلے ہمیں ایک ناؤن چاہیے، اسم چاہیے. ٹھیک ہے؟ اب اس اسم کی بارے میں ہم کو کوالٹیز بتانا، کوئی بھی کوالٹی. تو ناؤن ہے تو کوالٹی رہ جائے گی، لیکن صفت کو صفت نہیں جڑی. میرا بولنا کیا ہے؟ دو صفات مل کر موصوف صفت نہیں. موصوف کون ہے؟ صفت والی شخصیت ہے نا. تو یہ ناؤن کو کیا نام دیں گے تو عربی میں؟ ایسی شخصیت جس میں اچھی یا بری کوالٹی ہے اس کو کیا بولیں گے؟ موصوف. اب یہ موصوف جو ہے اس کے اندر میں کچھ اچھی یا بری کوالٹی. ٹھیک ہے؟ تو جو بھی یہاں لکھیں گے آپ اس کے بارے میں، یہ اس کے صفات ہوں گے، ایڈجیکٹیوز ہوں گے، وشیشن ہوں گے. آپ سمجھے؟ یہ پورے کوالٹیز آپ اچھے پورے ملا کے بولیں. تو جس کے متعلق بات کر رہے، کوالٹی بتا رہے، انہیں موصوف ہے. اور کوالٹی ایک ہے تو صفت ہے، جمع ہے تو صفات ہے. یہاں تک سمجھے؟ اب میں ایک چھوٹا سا بچکانہ اگزامپل لیتا ہوں تاکہ آپ کو اور آسان ہو. تو ہم نے ایک ناؤن لی، کیا ہے؟ کیا ایک شخصیت ہے؟ کیا ایک بلی کا نام ہے؟ تو کیٹ کے بارے میں آپ اچھی چیز بولیے. کیٹ اسمال بگ. ہاں دیکھیے، آپ پڑھیے خوبصورت بلی. بلی کی کوالٹی ہے. اب یہ بچی بولی جیسا چھوٹی ہے، اور بڑی ہے، بڑ ہے، بگ. اچھا اوبیڈینٹ ہے، فرما بردار ہے.
Cat is बदतमीज white. है, Cat बदतमीज white. है, बदतमीज है, रूड, बच्चों के आंख पे आती, खराब क्वालिटी। ये क्वालिटी उसके अंदर कुदरत ने दी, ये क्वालिटी उन्हें छोटी, ये क्वालिटी बड़ी है, ये क्वालिटी क्या है, फर्माबंधन, ट्रेनिंग के बाद आई उसको। अच्छा, और क्या बोलो, बोलो बेटे, क्या बोल रहे थे आप? Cat white. color. वाइट, White cat. वाइट, बस है। ये तमाम जो बाहर सर्कल के लिखे हुए हैं, एक को बोलेंगे सिफत, और जमा को क्या बोलेंगे? इंग्लिश में एक को बोलेंगे एडजेक्टिव, और तमाम को बोलेंगे एडजेक्टिव्स। ठीक है भाई। किसी भी शख्सियत को बयान करने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए हम ये चीजों का इस्तेमाल करते हैं। क्या बोलेंगे? एक बड़ी बिल्ली बोलो, अभी क्या, और बोले बड़े बिल्लियां तो बोलते हैं भाई, बोलना ब्यूटीफुल बिग कैट। ब्यूटीफुल और बिग दोनों भी सिफात है कैट के। तो सिफात एक से ज्यादा क्या, बिल्ली के सब सिफात है, चाहे आप एक बोलो चाहे ज्यादा बोलो, आया समझ में? तो मैं आपको जो है इंग्लिश ग्रामर का इस्तेमाल करके आपको ये कुछ चीजें बता रहा हूं। अच्छा, सबको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है जी सबको? सर, जी सर, आ रही है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि फिल्म इंडस्ट्री, मालूम है ना, बम्बई की बॉलीवुड, उसके आप बनिए डायरेक्टर। क्या बनिए? और प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर डायरेक्टर का मतलब, पिक्चर आप निकाल रहे हैं, उसकी डायरेक्शन भी आप, यहां तक ठीक? तस्वीर करो कि आप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है, एक फिल्म बनाना है, उसमें हीरो लेना है, जो भी है कैरेक्टर्स आपको लेना है, और फिल्म बनाना है, पूरी फिल्म बनाकर मार्केट में लाना है बिकने के लिए। हाँ, तो अभी हमारे फिल्म का हीरो है, क्या है, हाँ, और उसकी एक्शन फिल्म है, और उसके बारे में हमने 2 लफ्ज लिखे, पढ़िए। डॉग रैन, मतलब क्या हो गया? कुत्ते की फिल्म बनानी है, पिक्चर बतानी है स्क्रीन पे हमें, कुत्ता भागा, कुत्ता दौड़ा। जरा तस्वीर करो, आप कुत्ता दौड़ा बताने के लिए कौन सा कुत्ता बताएंगे? जब तक कुत्ते की चेहरे की शनाख्त नहीं होगी, आपको कौन सा कुत्ता बताने नहीं आएगा। आप बन जाइए डायरेक्टर, कुत्ता दौड़ा तो कौन सा कुत्ता भाई? उसके सिफात लाना पड़ेगा, उसका मेकअप करना पड़ेगा, कुत्ते का क्या मेकअप करना पड़ेगा, पाउडर, काजल, जो भी है, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव्स। तो अब आपको मुतय्यन करना है, डिसाइड करना है कुत्ते के बारे में, तो आपने कहे कोई तो भी एक, कोई तो भी एक कुत्ता नहीं बता सकते, कोई तो भी कुत्ता कैसा बताएंगे? अभी कब बताने आएंगे क्या? नहीं, अब वो तो आवारा हो गया वो। तो आपको बताना है खास कुत्ता, क्या बोलो, कौन सा कुत्ता बताना है? हाँ, अब एक नहीं आएगा, वो क्या आएगा, ये मारिफा रहेगा। अब बोलो द बिग डॉग है, बोलो, एक बड़ा कुत्ता दौड़ा। नांदेड़ में बड़े कुत्ते 2 लाख, कौन सा कुत्ता था, बता सकते आपको? तो बिग क्या है भाई, डॉग की क्या है, सिफत। अब फिर से बड़ा कुत्ता कौन सा, फिर से आप जो इसको रिड्यूस करो, तो फिर किसी ने कहा द बिग, एक नई सिफत लाई हमने। हाँ, जरा और क्लियर दिख रहा कुत्ता, देखो अब देखो ना कुत्ते का मेकअप क्या क्या करे पड़ना। हाँ, एक बड़ा काला कुत्ता दौड़ा। अरे
ऐसे तो मेरे मोहल्ले में 10 है, फिर कौन सा कुत्ता? अब देखिए और बड़ा करें, द बिग ब्लैक डोबरमैन डॉग, तो शिकारी कुत्ता रहता। बोलो, एक बड़ा काला शिकारी कुत्ता दौड़ा। अब जरा कुत्ता वजाहत हो रही, इसकी क्लियरिटी आ रही। अभी भी 3 कुत्ते ऐसे, लेकिन इनमें से एक कुत्ता ऐसा है जिसकी दुम कटी हुई है। पुलिस वालों ने ट्रेनिंग के लिए क्या करा उसके, हाँ, तो इसके पास एक अपने को फ्रेज लगाइए। अब पढ़ो वाला, कुत्ता क्लियर दिख रहा, पढ़ो। एक, पढ़िए, एक बड़ा काला डोबरमैन कुत्ता जिसकी दुम कटी हुई है वो दौड़ा। आप मेरे मिल हंस सकते वजाहत के साथ में, ऐसा कुत्ता ढूंढते लाओ, उसको हीरो बनाओ। तो ये जो लिखे हुए क्या क्या भाई, डॉग की पहली सिफत क्या है, कौन सी क्वालिटी का है, डोबरमैन शिकारी। ये क्या है, काला। ये क्या है, बड़ा। और ये खास। अब उसके बाद बताए मालूम, जिसकी दुम कुत्ती। अब वो फिल्म में डालेंगे तो एग्जैक्टली देखेंगे आपको, हाँ उनसे कुत्ते की बात कर रहे हैं भाई, आवारा कुत्ता नहीं भागेगा। अच्छा फिर बोलो कहां भागा जी, अब ये वर्क की मेकअप कर रहे हैं, कहां भागा जो ने, कार के पीछे भागा। अब लेकिन उसको बताना पड़ेगा, भागा तो हवा में भागा, जमीन पे भागा, वक्त बताना पड़ता है, इसका मुतय्यन करना पड़ता। तो बोलो, ए बिग black Doberman dog with short tail ran behind a car. बोल तो बोलो, एक बड़ा काला डोबरमैन कुत्ता जिसकी दुम कटी हुई है दौड़ा कार के पीछे। कब, सुबह में 4 बजे कुत्ते भागते, कार के पीछे भागा। कब, अब आपको फिल्म में लाना पड़ेगा, अभी दिन निकला नहीं। अब कहां भागा बोलो, अब देखो, अब हाईवे पे तो आपको 2 तरह से रास्ता बताना पड़ेगा, जा रहे हैं और लोग आ रहे हैं, कारा जा रहे, कारा देख के पीछे भागना होगा। अच्छा अब अगली बात तो क्यों भागा भाई, पकड़ दे कुछ और को, क्यों, ये कुत्ता ट्रेन है पुलिस का। तो दरअसल इसमें 2 ही टुकड़े हैं, एक जोश क्या है कुत्ता, दूसरा क्या है भागा, ये पूरा मेकअप है। तो फिलहाल ये मेकअप को इधर वाले को भूल जाओ, जब हम वर्क पढ़ेंगे ये मेकअप करेंगे। इतने मफाइल है, मफूल है, कितने मफूल है, भागा कार के पीछे, सुबह 4 बजे हाईवे पर, पकड़ने कुछ और। ये सब मफूल की शक्लें हैं, जब आप पढ़ाएंगे हम फेल तो आपको पढ़ाएंगे कितने किस्म के मफूल है, 5 किस्म। मफूल की कितने किस्म है, ऑब्जेक्ट की कितने किस्म है, 5। तो यहां पूछो, वेयर डिड द डॉग रन ऑन अ हाईवे, एट व्हाट टाइम, वेयर, ऑन अ हाईवे, व्हाई। तो तमाम जुबानें दुनिया की इसी तरह चलती। तो वर्ब का मेकअप करेंगे ऐसा, नाउन का मेकअप करेंगे ऐसा। तो अब अभी हम जो है वर्ब नहीं पढ़ रहे, जब पढ़ेंगे, जब ये पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इसको निकालते हैं। तो एक शख्सियत का नाम क्या है, डॉग। डॉग क्या है, मौसूफ, बोलिए,
सिफत एक है बिग, तमाम सिफात है। यहां तक समझे? तो अगर मैंने दीवाना हूं तो मैं कैसा करूंगा, दो सिफात मिला दूंगा। देखते हैं दो सिफात मिला के क्या होगा। मैंने बोला बिग ब्लैक, बोलो ये क्या है? एक बड़ा काला, मायने है कुछ? जब तक इसम नहीं आएगा ये मुरक्कब बन नहीं सकता, ये मैं आपको साबित करना। तो यहां पे क्या लाना जरूरी है, किसकी बात हो रही है? अब ये बनी फ्रेज भी बनी तो ढंग की बनी। तो फ्रेज में मौसूफ कौन है? ये क्या है? और ये ए क्या है? नकीरा। समझ में आया आपको? तो मौसूफ सिफत बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? एक इसम होना जरूरी है और इसम के बारे में क्वालिटीज बताना जरूरी है। अब चलिए अरबी के रूल्स में जाए। ये है मौसूफ, बोलिए। ठीक है, मौसूफ ला लीजिए आप। वलदुन, वलदुन बोलता हूं, आ गया। नकीरा है, एक लड़का। अब इधर जो लिखेंगे हम उसकी क्वालिटी लिखेंगे। वलदुन तवीलुन, क्योंकि नकीरा है। क्या बना बोलो? अ टॉल अ बॉय, अ टॉल अ बॉय। उर्दू कैसा पढ़ेंगे? लंबा, एक लंबा लड़का। और निकाल देते हैं। ये अगर मौसूफ सिफत को क्वालिफाई होना है ये दो मिलकर, तो आपको इसको दिन के पैमाने पे लाना पड़ेगा। बोलो अब बॉय क्या है? मारिफा है नकीरा है? नकीरा। कभी मारिफा की नकीरा है? शाबाश, ये दोनों भी मैच हो गए। कौन? डी मैच हो गए। अगर आप देखो इस पे भी पेश है, इस पे पेश है। वलदुन में उन है, तवीलुन में उन है, दोनों रफा। शाबाश। अब देखो एक इन्हें एक है, इन्हें भी एक है, वाहिद। अच्छा कुछ ये क्या है? बॉय क्या है? मुज़क्कर, और ये भी मुज़क्कर। इसको बोलते हैं एग्रीमेंट। बोलो, एग्रीमेंट का मतलब मुताबिकत, हम आहंगी। इसके अंदर जो कुछ है वो भी इसमें है। ऐसा DING मिले तो ही मौसूफ सिफत बनती, वरना नहीं बनती। दोनों क्या क्या मिलना चाहिए? मारिफा नकीरा मिलना, ऐराब मिलना, खलास। चार चीजें मिलेंगे तो ही बनेंगे। ये पहला ज़ाब्ता आ गया, प्रिंसिपल नंबर 1, रूल नंबर 1। क्या क्या होना चाहिए? अच्छा, एक शख्स के कई सिफात भी आ सकते, लेकिन सबकी क्वालिटी मिलना है। ठीक है, सबके हम आहंग होना, कंपैटिबल होना, एग्रीमेंट होना, कंकॉर्डेंस होना। कंकॉर्डेंस बोलते हैं इंग्लिश के ग्रामर में। इट मस्ट अग्री विद द नाउन, द एडजेक्टिव मस्ट अग्री विद द नाउन इन 4 एस्पेक्ट्स। पहला एस्पेक्ट क्या है? डेफिनेट इंडेफिनेट। सेकंड क्या है? स्टेटस, हायरार्की स्टेटस। नंबर 3 क्या है? जेंडर। नंबर 4 क्या है? नंबर। तो दूसरा रूल क्या है? एक इस्म के कई सिफात आ सकते, इसमें ये खासियत है। अच्छा, और एक रूल है इसमें, एक सिफात आई, ये दोनों के बीच में कोई आ सकता और भी कोई चीज डाल सकता।
बाकी के मुरक्कबात के दोनों के बीच में ये क्या है, मौसूफ और सिफत, बीच में बाकी के मुरक्कबात में कोई बैठ नहीं सकता, इशारा मुशारा नहीं, बीच में कोई नहीं आ सकता, मुजाफ मुजाफ नहीं, बीच में कोई नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता, इसके बीच में भी आ सकता, ये दो है, दरमियान में भी कोई बैठ सकता और सिफत को दूर कर सकता। तीसरा रूल, पहला रूल बोलो क्या है, हर एक मौसूफ अपने सिफत से चार पहलू में हम आहंग हो, कंपैटिबल हो, है क्या, डेफिनेट इंडेफिनेट, पहला नंबर जेंडर हो गया। सेकेंड रूल, एक किस्म के कई सिफात, कल देखे थे ना अब्दुल, क्या बोला था आपने, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कर पड़े, कई सिफात, और उसके बीच में कोई भी आ सकता। तो अगर बाद में कोई सिफत दिखे तो अच्छा था उसकी सिफत। तीन रूल बोलो, पहला क्या है, मौसूफ ने एग्री होना चाहिए अपनी सिफत से चार पहलू में देंगे। पहला क्या है, पहला इस्म होना, उसकी सिफत होना, इस्म नहीं है तो नहीं हो, सिफत को सिफत नहीं बनती, इस्म के साथ सिफत। इस्म जो है क्या है, सेंटर है, समझे ना, मरकज है, उसके पास में कुछ भी रख सकते। पहला क्या है बोलो, इस्म होना, सिफत। दूसरा क्या होना, चार बात, आखिरी चीज दूसरा क्या, मौसूफ और सिफत के बीच में कोई भी आ सकता। इसके पहले कौन सा बताओ, रोको रोको बेटे बोलता हूं, इसके पहले कौन से मुरक्कबात सीखे हमने, पहले सीखे हमने मुरक्कब इजाफा, उसके बीच में कोई नहीं बैठ सकता। दूसरा क्या सीखे, जारी, उसके बीच में कोई नहीं बैठ सकता। उसके बाद भी क्या सीखे, हाँ इशारे, उसके बीच में भी ये नहीं, बड़ा रिलैक्स है, बीच में भी बैठा तो कोई मुश्किल नहीं। हाँ बेटे पहला लिखो, पहला क्या बोला मैंने, मैं आपको लिख पा रहा, हाँ आप नोट कर। पहली कंडीशन क्या, नाउन होना और सिफत है, नाउन के बगैर सिफत कुछ नहीं, जीरो है, हो गया। सेकेंड रूल क्या है, इसके चार चीजें, डी आई एन जी, इसके भी चार चीजें, डी, इसका डी मिलना, इसका डी मिलना, इसका आई मिलना, इसका आई मिलना, इसका एन मिलना, इसका एन मिलना, इसका जी मिलना, इसका जी मिलना, तो बनता मौसूफ सिफत, नहीं तो नहीं बनता। जम गया। फर्ज कीजिए कि ये इस्म है, नाउन है, एक है, इसके सिफत अनेक, तो हर एक सिफत ऐसा डी आई एन में अग्री होना, नहीं तो उसकी सिफत नहीं है। बात समझ में, आखिरी को मैंने बताया, ये इस्म है और ये सिफत है, इस्म और सिफत के दरमियान में कोई लफ्ज बैठ सकता, आगे समझ में, हर्फ आ सकता है, इसमें इशारा सब कुछ भी बन सकता, कोई मुरक्कब भी बन सकता। आखिरी रूल ये है कि कोई भी नाउन का है, सिफत मैंने अभी बताया था, कुत्ता कैसा बताया था, आखिरी क्या बताया था, कटी हुई दुम के साथ, तो मुरक्कब भी, मुरक्कब इजाफी, बोलिए मुरक्कब इजाफी भी सिफत बन सकती, मुरक्कब इजाफी हो, बोलो अल्लाह रब्बुल आलमीन, हो भाई, तमाम आलमों का रब कौन, अल्लाह ताला। तो मुरक्कब इजाफी, देखो सिफत बनने के लिए कौन क्या है, इंडिविजुअल क्वालिटीज आ सकते हैं और फ्रेज की शक्ल में भी आ सकते। कल हाफिज साहब ने बहुत प्यारा बताया, तो मैंने पूरा बताया, अब हम जो है अंदर जाके एक एक चीज को कंफर्म करेंगे कि जो जो मैं बोला हूं वो तमाम चीजें
आज की क्लास या कल की क्लास में सीखने का मकसद है। ठीक है भाई, चलो आगे। तो ये तमहीद मैंने बांधना था, प्रीफेस था ये पढ़ने का। अब पढ़ना इंशाअल्लाह शुरू करें। सर एक डाउट था। बोलिए भाई, बोलिए बोलिए। सर आपने बोले कि मौसूफ और सिफत दोनों की डीआईएनजी मैच होना, जी तो जब मुरक्कब इजाफी में जब आएगा तो हाँ, इसमें मुजाफ का डीआईएनजी चेक करना पड़ेगा क्या सर? ये बात पता है क्या बोलते? बिल्कुल सही फरमाया आपने। क्यों? तो मुजाफ मुजाफ इलैहि में जो लीडर है ना, जो लीड कर रहा वो मुजाफ। क्या कहा हमने? हामिद का बेटा। किसकी बात हो? बेटे की बात करी, हामिद की बात नहीं हो। यूनुस कुरैशी। चलो बात करिए। हाँ आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, वो जरा फोन आ रहा था मेरा। तो मैंने क्या कहा? हामिद का बेटा। ठीक है, तो हामिद के बेटे में अहम पहलू क्या है? बेटा। बेटे की बात कर रहे हैं, हामिद की नहीं बात कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया। मुजाफ मुजाफ इलैहि में मैचिंग कौन होना? मुजाफ में, है ना? ठीक है, तो ठीक है याद सर। करो, कल कल बोले थे हाफिज साहब ने अल्हम्दु लिल्लाही, लिल्लाही आ गया। रब्बी रब्बी रब्बिल आलमीन, रब्बू नहीं आया, रब्बा नहीं आया, रब्बी आया। क्यों भाई? आलमों का रब कौन है? रब है। रब कौन है? मुदाफ है। तो मुदाफ और अल्लाह लफ्ज जलाला दोनों भी जर में मैच हो रहे। बहुत पते की बात पूछी आपने, बहुत सही। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए भाई साहब, टीचर का काम पढ़ाना नहीं है। टीचर का काम पढ़ाना नहीं, और स्टूडेंट का काम पढ़ना नहीं। टीचर का काम सोचने लगा, इल्म सोचना, पढ़ना नहीं। टीचर कुछ भी अपनी तारीफों में कुछ भी करता, स्टूडेंट अपनी तारीफों में कुछ भी करता। एंड रिजल्ट क्या है? जब घर जा रहे तो नॉलेज का टिफिन लेके घर जाना। हाँ, ये मेरा माल है, ये मुझे सर ने अपलोड करे, मैं डाउनलोड कर लिया। वरना तालीम ही नहीं है। तो क्या बोलना है इसको? ट्रेन योर ब्रेन। अगले आदमी के ब्रेन को ट्रेनिंग देना। अब उन्हें क्या तरीका इख्तियार करता, इंपॉर्टेंट नहीं। द एंड रिजल्ट मैटर्स। आखिर में उन्हें घर को वो नॉलेज का टिफिन लेके घर को जाना होना। ओके, इसको क्या बोलेंगे? मौल्लिम। और इसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे, मौल्लिम और मैं साथ साथ हो। बात समझिए, क्या दर्जा दिया उन्होंने। आपने कितना आसान बनाया सब्जेक्ट को, और आपने कितना अच्छा ग्लूकोज चढ़ाई जैसा उसके खून में दौड़ा। याद रहेगा? माशा। मैंने ये इसलिए कहा, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं। कल ही मैंने हाफिज साहब ने इस पर डिस्कस करे। ये एक बैच हम ऐसी लेंगे, जो पढ़े लिखे जो है अरबी वाले, उनको पढ़ाना सिखाना। पढ़ाना एक बहुत बड़ा इल्म है, ठीक है ना? तो इंशाअल्लाह मैंने कहा, मैं नहीं रहा हाफिज साहब, तो भी आप एक बैच लेना आगे चल के। पढ़ाने वाले मौल्लिम बनाना है अरबी, ताकि हिंदुस्तान पूरा रोशन हो जाए कुरान के लिए। ठीक है ना? तो ये आपका फर्ज है, पढ़िए ऐसा। हाँ, मौसूफ सिफत, इल्मन, बोलो नाफियन। मायने देखो, इल्म का मतलब नॉलेज, इल्म का मतलब नॉलेज, नाफियन का मतलब प्रॉफिटेबल नॉलेज। तो हमारे बुजुर्ग हमसे कहते थे कि बेटे जरा फजर में उठो और ये दुआ पढ़ो, या अल्लाह
मुझे इल्म नाफिया अता फरमा, जो मेरे काम में आए और दूसरों के काम में आए। ठीक है? हाँ, क्या 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 मांगेंगे अल्लाह ताला से आप? नफा बख्श इल्म दे अल्लाह, मुझे नफा बख्श इल्म और मुझे हिकमत दे। हिकमत सबसे बड़ी क्वालिटी। चलिए छोड़ो, इल्मन का मतलब क्या है? इल्म। नाफिया का मतलब क्या है? फायदे बख्श। तो पढ़ेंगे, उर्दू में कैसा पढ़ेंगे? इधर से पढ़ेंगे, नफा बख्श इल्म, नफा देने वाला इल्म। जरा चेक करो, DING लगाओ। DING के पैमाने पे नापेंगे। चलो, इल्मन क्या है? नकीरा है, मारिफा है? नकीरा है। नकीरा। चलो ये ना लिखेंगे, नकीरा इन्हें नकीरा, नाफियन भी नकीरा है। पास हो गए। अब एराब देखो, ये नस्ब है, ये क्या है? नस्ब है, ये भी नस्ब है। अब देखो, ये वाहिद है और ये भी वाहिद है। वाहिद है। ये मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर। अब ये दोनों में तमाम चीजों की मिलाप हो गया, मिलाप हो गया, इसलिए ये बन गया मौसूफ, और ये एक है इसलिए सिफत। आ गया समझ में आपको आसानी से? अभी अगर आपका कोई भी सवाल है तो कीजिए। चलो ठीक है, आगे चलेंगे। जुमला इस्मिया पढ़ रहे थे हम। जुमला इस्मिया के दो अहम जुज, मुब्तदा जिसके मुतालिक बात की जा रही है, खबर इसके बारे में इत्तला दी जा रही है। मुब्तदा कैसा हो? मारिफा हो, रफा हो। खबर कैसी हो? नकीरा हो, रफा हो। चलिए पढ़े, अल वलदु सालिहु। अब आप पढ़िए, मुझे ऑनलाइन वाले बताइए, अल वलदु सालिहु मौसूफ सिफत होने के काबिल है क्या? बोलो, मुंडे नहीं लाएंगे, बोले अल वलदु मारिफा, अस्सालिहु मारिफा, दोनों रफा, जी दोनों वाहिद, दोनों मुज़क्कर। दोनों मुज़क्कर। ये दोनों मिलकर, अब ये दोनों जुड़ गए, ये दोनों जुड़कर एक मुरक्कब है, क्या बना? नाकिस। नाकिस, नाकिस। बोलो, नेक लड़का, एक खास नेक लड़का, एक खास नेक लड़का। इसको एक डब्बे में घुसा दो, बंद कर देंगे इसको एक डब्बे में, तो ये बन गया हमारा मुब्तदा। एक नेक लड़का। और यहाँ पर जरा देखो, ऐसा मुब्तदा मिलते ही अगला काम देखना कि कोई ऐसा लफ्ज है जो नकीरा है, ये नकीरा है, और ये नकीरा मिलते ही यहाँ पर डाल देना है। बोलो, एक नेक लड़का है बैठा हुआ। तो जुमले इस्मिया में, एक जुमले इस्मिया में मुब्तदा मौसूफ सिफत मिलकर मुरक्कबे तौसीफी हुई, और जालिसुन खबर हुई, और जालिसुन अपने मुब्तदा से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। चलो अब यहां पढ़ो, अल वलदान, इसके मायने क्या है? हानी, दो खास लड़के। अस्सालिहान, जरा चेक करो भाई, माइक बंद कीजिए, फिर डिस्टर्बेंस आ रहा है, माइक बंद कीजिए। आपको कुछ पूछना है तो माइक चालू करो। इसका मतलब है दो लड़के। कितने लड़के? लड़कों की तादाद बताई जा रही है दो। अब नेकी की भी बात बता जा रही है दो। चेक करो, ये डेफिनेट, ये डेफिनेट। आनी रफा हालत है,
ये भी, ये ऐराब बिल हर्फ है, अलिफ से बता रहे हम। आनी आईनी आईनी रहता तो नसा बढ़ जा रहा। तो बोलो, ये रफा अल वलद मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है, ये तस्निया है, ये भी तस्निया है, तो इनका रिश्ता बन गया। बोलो, दो नेक लड़के, दो बैठे हुए, देखो, जालिसानी, जालिसुन एक बैठा, आनी लगाई तो दो बैठे, तो ये नकीरा है कि मारिफा है? आनी मारिफा है, तो ये दोनों मुब्तदा बन रहे हैं। बोलो, दो नेक लड़के, बाप रे, बहुत प्यार से कुछ, ठीक है, आया क्या समझ में? आया मारिफा कहाँ है? मारिफा वो तो डेफिनेट होता भाई साहब, ये रफा हालत है, दोनों रफा आना, लेकिन रूल क्या है रफा आने के लिए? वन वर्ड होना। तो यहाँ पे डबल वर्ड है, मुरक्कब है, तो इसको इन्हें किसकी जगह बैठा हुआ है? मुब्तदा की जगह पे। तो बोलो, रफा महल्लन, और ये रफा लफ्जन, तो रफा रफा दोनों मारिफा। अच्छा, उन्हें मारिफा नकीरा, तो नकीरा है ना, ये मारिफा का पीछा नकीरा करेगा। हाँ, समझ आ गया? चलिए आगे चलो, एक ही चार्ट अच्छा पढ़ो, आपकी तबीयत खुश हो जाए। अब जरा देखिए ये क्या है, जरा पढ़िए, ऑनलाइन वाले खोलो, माइक खोलो। अल वलदु सालिहूना, नहीं पढ़ेगा। अल औलाद रुक जाओ, अब रुक जाओ। अल औलादो है, क्या है? अल औलादो के अंदर सबसे पहली चीज क्या है? ये जमा है। जमा होती चेक करो कि ये आखिर है कि गैर आखिर है, इंसान के है ना ये, तो आखिर है। आखिर तो इन्हों मोनस का इतलाक नहीं करेंगे। हाँ, अब इन्हों जमा ले लेंगे। बोल, अल औलादो अस्सालिहूना, हाँ, क्योंकि ये इंसानों में से है। गैर आखिर है क्या? कुत्ते बिल्लियां झाड़ा वाड़ा है तो गैर आखिर हो जाते। तो बोलो, बच्चे, लड़के या बच्चे, बोले औलाद का मतलब बच्चे, औलाद नेक, नेक औलाद, चेक करो। अल औलाद मारिफा डेफिनेट, अस्सालिहु डेफिनेट, पहला क्लियर। दोनों भी रफा में है लफ्जन, जो यहाँ पे वाव दिख रहा है इसका मतलब लफ्जन। माइक बंद कीजिए भाई, माइक बंद कीजिए जिसको। ये जमा, ये जमा, ये मुज़क्कर, ये मुज़क्कर, तो रिश्ता हो गया। बोलो, कौन से लड़के? नेक लड़के, नेक जमा लड़के। यहाँ पे देखो, जालिसूना, ये क्या है? इस्म है, नकीरा है, ठीक है, लेकिन रफा है। तो बोलिए, नेक लड़के है, सब बैठे हुए। अब यहां जाओ, जरा गौर से पढ़ना। अल बिंतु, बिंतु यानी लड़की, ठीक है, और ये क्या है? सालिहतुन, सालिहतु अल आया, इससे तू आ गया। बोलो, पहला हिस्सा मारिफा, दूसरा हिस्सा मारिफा, पहला रफा, दूसरा रफा, पहला मोनस, दूसरा मोनस, वाहिद वाहिद, मिल गया। अब बोलो, क्या है ये? नेक लड़की, इसकी खबर भी मोनस आएगी। पढ़िए, जालिसतुन, नेक लड़की है, बैठी हुई। तो मुब्तदा में पूरे के पूरे मैंने क्या लाया? मौसूफ सिफत,
मुरक्कब डाल दिया। अलबिंतानी, तानी, हाँ, दो लड़कियां। कैसे है भाई? हाँ, ली, हाँ, असाली, हतानी, दोनों भी मोहम्मद। बोलो, ये भी डेफिनेट मारिफा, ये भी डेफिनेट मारिफा, ये एराबी हालत हर्फ के हिसाब से रफा, ये भी हर्फ के हिसाब से रफा, ये तस्निया, ये मोनस, ये मोनस। ओके हो, अभी दोनों को पकड़कर मुब्तदा के डब्बे में डाल। मुब्तदा, यहां आ जाओ। जालिसतानी, दो नेक लड़कियां, दोनों हैं बैठी हुई। कैसे हो रहा? तो सब में क्या डालना पड़ेगा आपको? है। क्यों डालना पड़ेगा है, जरा मुझे बताइए ऑनलाइन वाले। ये नकीरा है पूरे के पूरे, ये पूरे मारिफा है। तुम तीनों है मारिफा दिखा रहे हैं। चलिए लास्ट पढ़िए। अल बनातु, अल बनातु यानी लड़कियां, अल बनातु यानी लड़कियां। अब देखो उसकी सिफत क्या है? अस्सालिहातु, चलो नेक लड़कियां, मैचिंग हो रही है, इसमें मौसूफ सिफत है। इधर आ जाइए। जालिसातुन, सबके सब बैठी हुई। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत अहम है। आप फोटो शोटो ले लीजिए, इसको थोड़े प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको लेवल 1 समझना। मौसूफ सिफत का क्या है? लेवल 1। हाँ भाई, ऑनलाइन में कोई बच्चियों को या हमारे भाइयों को कोई डिफिकल्टी है, बेझिझक पूछिए। मैं उनको इनकरेज करूंगा जो कमजोर महसूस करते हैं या झिझकते, पूछिए, कुछ भी पूछिए। सर ये जमा वाला जो है उसको हाँ, फिर से बता दीजिए। कौन सा जमा वाला होना बेटा? ये होना लास्ट वाला। अल औलाद अस्सालिहून, इसमें हमको आवाज नहीं आई थी सर, इधर अच्छा, डिस्टर्ब हल हो गया। औलाद का मतलब है औलाद, वलद तो एक को बोलते हैं, औलाद तमाम बच्चों को बोलते, जमा बच्चे, औलाद है ना बच्चे। अब ये जमा है, औलाद लिखांगे, ये जमा है तो ये भी जमाएगा। सालिहूना, सालिहूना, मुस्लिमूना, उसी तरह से मुस्लिमूना, उसका नसब मुस्लिमीना, उसकी जड़ मुस्लिमीना, तो होना आ रहा है। और यहाँ अल है, मारिफा है, ये मारिफा है। औलाद जमा है, इनो जमा है, इनो क्या है भाई? दोनों जमा। बोलो, मुजक्कर है, सब मिल रहे हैं, इसलिए क्या हो गया? नेक बच्चे है, जालिसूना, मुस्लिमोना, बैठे हुए, तमाम सब बैठे हुए। समझा बेटा? जी सर। नहीं समझा फिर पूछो, कोई बात नहीं। तो इंग्लिश करेंगे अपन। यहाँ देखो, हाँ, ये कौन है भाई? नेक, पायस चिल्ड्रन, यहाँ पे लग लो। हाँ, ये है, बोलो, पायस चिल्ड्रन आर सिटिंग, नेक बच्चे हैं, सबके सब बैठे हुए। तो उधर भी आ रहा है जमा, तो इधर भी आ रहा है जमा। ये दोनों में फर्क एक नहीं आता है, इख्तलाफ का है मारिफा नकीर, बाकी सब मिलता है। हाँ हाँ बोलिए। अब और भी कोई किसको भी जरा भी डाउट है तो पूछिए। मुझे खत्म नहीं करना है, मुझे सीखना है, सिखाना है, और आपके साथ में रखना है।
سر البنتان صالحتان دونوں تسنیہ ہے. ہاں ذرا یہ بول رہے کیا آپ یہ یا یہ جی نہیں اوپر اور البنتانی. البنتانی میں آپ کو پتا ہوگا الف جب آتا ہے تو آپ کو دو کی یہ دو کا ہے الف کیا بتا رہا آپ کو دو ہے دو ہے. بنتانی لڑکیاں دو لڑکیاں اور یہاں پہ بھی الف آ رہا ہے دو نیک لڑکیاں اور دو نیک لڑکیاں دو بیٹھے ہوئے ہیں جالسہ تانی تینوں میں الف آ رہا ہے تینوں میں یہ نشاندہی کر رہا ہے کہ ہم سب کے سب تسنیہ ہے اور سب کے سب رفع حالت میں ہے کیونکہ نسب میں بنتئی نہیں ہوگا صالحت تئی نہیں ہوگا اور یہاں پہ جالست تئی نہیں ہوتا تھا نسب ہوتی تو یا جر ہوتی تو یہ تین الف کس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہم تسنیہ ہیں اور رفع حالت ٹھیک ہے اعراب بالحرف ہاں اعراب it is showing the i'rab with letter by virtue of letter حرف یہ دیکھیے یہاں پہ کیا تھا یہ پیج دکھا رہا ہے یہ پیج دکھا رہا ہے تو یہ اعراب بال جب حرکت سے دکھتا ہے تو اعراب بالحرکت جب الف سے دکھ رہا ہے تو اعراب بالحرف الف از دا لیٹر آگے تو آپ کے اگر کوئی اور سوالات نہیں ہے تو کل آئیے سوالات میں آگے نہیں جانا چاہ رہا اس میں اس کو آگے کل لے جائیں گے لیول 2 میں جائیں گے کل جب آپ اس میں پکے ہو جائیں گے تو لیول 2 میں سر ایک سوال ہے دیکھیے ہاں سر ہاں سر ہاں سر سر یہ جو جملہ اس میں تو اس میں سر یہ جو ڈنگ کے اعتبار سے تین چیزیں سیم ہیں اور ایک چیز الگ ہے جیسے یہ معرفہ ہونا اور نکیرہ ہونا تو سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں سیم ہونا کمپلسری ہے یا ایک اور بھی چیز اگر الگ آئی تب بھی چل جائے گا مطلب یہ جملہ اس میں ہو جائے گا تینوں بھی چیزیں کمپلسری آنا چاہیے اور سیم ہونا یہ رول کتنا بنے گا معلوم 99.8 کتنا پرسنٹ بنے گا 99.8 ہاں تو ایکسپشن میں بتانے لگا ہوں آپ کو دیکھو بولو ہوا کون ہے وہ ڈیفینیٹ ہے وہ ہے ہم تو یہ بھی ڈیفینیٹ آ رہا یہ اس کا ایکسپشن ہے یہ استثناء بولو وہ اللہ ہے بولو هو اللہ ہاں تو ہر رول کا ایک توڑ رہتی ہر رول کا ایک استثناء رہتا رول کون بنایا انسانوں نے بنایا گرامر پہلے آئی یا زبان پہلے آئی زبان پہلے آئی ہم جیسے اجمی یعنی کہ نان عرب کو سیکھنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ گرامر بنا کر ہم کو دیے تو ہمارا کام کتنا بن رہا 99.8 یہ آپ نے پوچھ کے آپ نے 100% کر لیا اپنے آپ کو ماشاء اللہ 98 سے آپ اچھل کے کہاں چلے گئے 100% تو 0.2% ایکسپشن ہے تو یہ دیکھیں گے ہم یا یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے بھائی فائدہ دیکھنا انسان میں تو میں نے جب پہلا اصول بتایا تھا تو وہاں پہ لکھا تھا عموماً نکیرہ ہوگا عموماً کا مطلب آلموسٹ آلویز لیکن 2% ہاں جیسا میں نے کہا عموماً میں چائے پیتا ہوں مطلب میں 98% چائے پیتا ہوں اور 2% میرے دوست کے پیچھے لگا کافی پی تو پیتا ہوں اب سمجھ رہے ہیں ماشاء اللہ چلیے حافظ صاحب آئیے اب تک کام کیا کرتے ہیں
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का जो हमारा सबक था वो है मुरक्कब तौसीफी। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़े मुरक्कब इजाफी, उससे पहले हमने पढ़े मुरक्कब जारी, और उससे पहले पढ़े मुरक्कब इशारी। तो चारों मुरक्कबात अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके। मुरक्कब जारी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब तौसीफी कल आगे चल के और ज्यादा डिटेल में आएगा और कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये चार मुरक्कबात हमने पढ़ लिए, और शुरुआत से हम इस्म के ताल्लुक से पढ़ते हुए आ रहे। फेल का तारुफ हुआ और इस्म के मुताबिक हमने पढ़े कि किसी भी इस्म को पहचानना कैसा है, उसकी निशानियां क्या है पहचानने की, और उसका DING निकालना है, यानी कि मारिफा नकीरा, एराबी हालत, अदद उसका और उसका जिन्स। ये चारों एतबार से इस्म को पहचानना है, और दो इस्मों का, दो नाउन्स का आपस में ताल्लुक क्या है मालूम करना है। यहां तक के हमने पढ़ लिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ आयत लिखी हुई है, और मैं तमाम ऑनलाइन लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आज सब मिलके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हम अभी तक का जितना ग्रामर हमने पढ़े उसकी हम आज प्रैक्टिस करेंगे। तो एक ऐलान ये सुन लीजिए कि आज जितने भी क्लास के अंदर लोग ज्वाइन हैं, मैं ये चाहता हूं कि हर शख्स ने पढ़ना है, हर एक आदमी ने इसको पढ़ना है, हर एक ने प्रैक्टिस करना है। और पढ़ने वाले जितने भी रहेंगे, एक पढ़ेगा, बाकी के तमाम लोग सिर्फ सुनेंगे, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बीच में कोई करेक्शन भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पे है दो जुमले लिखे हुए हैं या दो लाइन लिखे हुए हैं, लहुम अजाबुन शदीदुन, और उसके बाद है लहुम मगफिरतुन व अजरुन कबीरुन। ये अल्फाज लिखे हुए हैं। तो ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी सब पढ़ेंगे, एक एक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन पढ़ने वाले हैं, कौन पढ़ेंगे? सिर्फ पढ़ना अगर है, आप लोग इजाजत दिए तो मैं नाम लेके भी आप लोगों का बोल सकता हूँ। नाम लेके बोलिए सर, सही रहेगा। जी, सबसे पहले आपका नाम आप ही बोलिए, चलिए। इसमें क्या सर, ग्रामर बताना है या सिर्फ पढ़ना है? हाँ, जो भी हमने अभी तक पढ़े, पहले इस्म को पहचानना है, इस्म का DING निकालना है, और मुरक्कबात आइडेंटिफाई करना है कि ये मुरक्कब है, फ्रेज है या नहीं है। दो इस्मों का आपस में कनेक्शन है नहीं है, फ्रेज है तो फिर कौन सी फ्रेज है। जैसे चार मुरक्कबात हमने पढ़ लिए और हर्फ हमने पढ़ लिए और इस्म का DING हमने निकालना सीख लिए। तो यही हमको देखना है, आज प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले लहुम अजाबुन शदीदुन, चलिए बताइए क्या क्या है। सर लहुम ये भी इसम है, लहुम इसम है, हाँ, अजाबुन भी इसम है और शदीदुन भी इसम है। अब जी, इसमें लहुम, हाँ हाँ डिटेल में जाएंगे अभी। लाम जी, ये है हरफ जर, लाम हरफ जर है जी। हुम जो है, बीच में एक जरूरी बहुत अहम बात, बीच में कोई भी बोलेंगे नहीं, कोई डिस्टर्ब करेंगे नहीं। अपना माइक आप बंद कर दीजिए, प्लीज प्लीज बंद कर दीजिए। अगर गलत भी हुआ तो करेक्शन कोई भी नहीं करेंगे। चलिए सर बोलिए। हुम इसम है सर, इसमें है हुम, हाँ, इसम में है मारिफा। मारिफा है, मारिफा इसलिए क्योंकि ये जमीर है, ये जमीर है, जमीर मुत्तसिल जमीर। जमीर में भी मुत्तसिल जमीर है, माशाल्लाह। हाँ, अब एराबी हालत इसकी जर है सर। एराबी हालत इसकी जर है,
जर इसलिए है क्योंकि ये हरफ जारी के साथ आ रहा है। हरफ जर के साथ आया, माशाल्लाह, हरफ जर की वजह से ये हालत जर में हुआ। जी। और नंबर के हिसाब से ये जमा है। जमा है। और जेंडर के हिसाब से ये मुजक्कर है। मुजक्कर है। अब ये दोनों मिलके सर मुरक्कब हो रहा है जिसका नाम मुरक्कब जारी है। जी, दोनों मिलके एक मुरक्कब बन गया, हरफ जर और इसमें मजरूर, मुरक्कब जारी, माशाल्लाह। सर तो पेन इसमें कलर जारी के थोड़ा अंदर जी different दीजिए मुझे। पेन जी कलर डिफरेंटली है सर, वो पेंट कलर, जी पेन का कलर। जी। तो दोनों मिलके मुरक्कब जारी हो गया, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। नेक्स्ट इसमें की तरफ आएंगे सर। जी अजाबुन, डिंग जी। के एतबार से पहले ये इसमें है नकीरा। नकीरा है। नकीरा इसलिए क्योंकि ये तनवीन के साथ आया है इसमें। जी, माशाल्लाह। और एराब के हिसाब से ये रफा हालत में है। रफा है, माशाल्लाह। नंबर के एतबार से वाहिद है क्योंकि वाहिद है। जमा की कोई इंडिकेशन नहीं है। जी, माशाल्लाह, और जेंडर के हिसाब से मुजक्कर है बहुत अच्छे। क्योंकि इसमें ता मरबूता, अलिफ ममदूदा या अलिफ मकसूरा नहीं लगा। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। अब नेक्स्ट है सर शदीदुन। जी शदीदुन डेफिनेट या इंडेफिनेट में नकीरा आई। नकीरा है। और नकीरा इसलिए है क्योंकि इसमें ये तनवीन के साथ आया है इसमें। जी और एराब के हिसाब से ये रफा हालत में है। रफा हालत में। जी। नंबर के हिसाब से वाहिद है वाहिद है। और जेंडर के हिसाब से मुजक्कर है। मुजक्कर है, माशाल्लाह। जी। अब सर अजाबुन और शदीदुन अगर डिंग के एतबार से देखेंगे तो सर दोनों की ये जो डिंग है सर ये दोनों सेम है, मतलब सेम है, दोनों भी मैच हो रहे। तो सर जब दो इसमें एक जैसे आते तो ये मुरक्कब तौसीफी में ऐड हो जाता और अजाब जो है ये मौसूफ बनता और शदीदुन ये सिफत बन जाता सर। जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो ये पहला वाला हो गया सिफत, और शदीदुन जो नहीं सर पहले ये मौसूफ हो गया, और शदीदुन शदीदुन जो हो गई ये सिफत हो गई, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और एक बात इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। जब इंग्लिश में अगर लेंगे तो पहले जी सिफत आती है और बाद में है ना उसका एडजेक्टिव आता है, लेकिन अरबी में पहले नाउन आता फिर मतलब पहले मौसूफ आता फिर सिफत आती है। सिफत आती, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। बाकी जुबान में भी, उर्दू में भी पहले सिफत आती, बाद में मौसूफ आता। अच्छा। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आपका नाम सर? आना इरशादुन। अना इरशाद, अंता इरशाद, माशाल्लाह, बहुत अच्छे सर, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा करे। तो ये देखिए, अभी ये हो गया लहुम अज़ाबुन शदीदुन, तो ये दोनों मिलके एक फ्रेज बन गई, ये हो गया मुरक्कब इशारी और ये हो गया मुरक्कब जारी। तो इसके सिर्फ मायने हमको देखना नहीं है, तो हमने आज इसका DING निकाल लिया और इसके अंदर जो दो फ्रेजेस है वो दो फ्रेज की भी हमने पहचान कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अब इसके बाद वाला जो जुमला है वो कोई और पढ़ेंगे। नाम बोले। वालेकुम अस्सलाम। जी पढ़िए। कौन पढ़ने वाले हैं? लहुम हाँ पढ़िए। लहुम लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। जी। लाम हर्फ जर, लाम हर्फ जर, हम मजरूर, हम इसमें DING में मजरूर। मारफा, जी, ये जर है। DING में जी मारिफा है।
جی حالت جر ہے جی اور عدد کے اعتبار سے عدد کے اعتبار سے یہ ہم جمع ہے جمع ہے مذکر ہے اور مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر مذکر ہے، مذکر ماشاء اللہ۔ اور ضمیر کون سی ہے، منفصل ہے یا متصل ہے؟ متصل متصل ضمیر ہے کیونکہ حرف کے ساتھ لگ کے آئی ہوئی ہے تو یہ متصل ہے جی۔ تو اب یہ دونوں مل کے کیا ہو گیا؟ مرکب جاری مرکب جاری جاری، ماشاء اللہ۔ چلیے آگے بڑھیں گے۔ مغفرتن، مغفرت مغفرت DING کے ساتھ معرف نکرہ ہے، تنوین نکرہ ہے تنوین کے جی، ساتھ ہاں۔ اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ اس کا رفع ہے، حالت رفع ہے۔ نمبر کیا ہے، عدد؟ یہ عدد کے اعتبار سے واحد ہے، مؤنث ہے، ہاں واحد ہے اور مؤنث ہے۔ مؤنث کیوں ہے؟ تا مربوطہ کے ساتھ کیونکہ تا مربوطہ لگا ہوا ہے، ماشاء اللہ۔ چلیے اب اس کے آگے واو حرف عطف واو حرف عطفی عطف، ماشاء اللہ۔ اس کے آگے اجر کبیر، جی بہت بڑا اجر، اجر ہاں، یہ معرفہ ہے، نکرہ معرفہ ہے تنوین یا نکرہ؟ ہاں نکرہ ہے جی۔ اعرابی حالت کیا ہے؟ اس کا رفع ہے، رفع ہے۔ اور نمبر عدد واحد واحد ہے۔ مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے، مذکر ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد ہے کبیرن، کبیر یہ معرفہ، یہ نکرہ ہے تنوین کے ساتھ، نکرہ ہے جی، حالت رفع میں ہے، حالت رفع میں ہے، واحد ہے، مذکر واحد ہے، مذکر ہے۔ اب اجر یہ دیکھنا موصوف، ہے، ہاں اسم ہم نے پہچان لیے، اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ دونوں کا کوئی دو اسموں کا آپس میں کچھ کنیکشن ہے کیا، کوئی فریز بن رہی کیا؟ فریز DING کس کا میچ ہو رہا؟ اجر کبیر کا، اجرن کبیرن کا میچ ہو رہا، تو یہ کیا ہو گئے؟ مرکب توصیفی مرکب توصیفی۔ تو پہلا والا کیا ہو جائے گا؟ موصوف، موصوف، اور دوسرا صفت، صفت ہو جائیں گی، یہ دونوں مل کے ہو گیا مرکب توصیفی۔ تو الحمدللہ جزاک اللہ خیرا کثیرا، آپ نے بھی پہچان لیا۔ شروعات میں ہے لہم، یہ لام زیر لام حرف جر کے ساتھ اس میں مجرور آیا، یہ مرکب جاری ہو گیا۔ مغفرتن اسم یہ الگ ہے، نکرہ ہے، حالت رفع ہے، واحد ہے اور مؤنث ہے۔ اس کے بعد واو آیا، واو حرف عطف ہے جو دونوں کو آپس میں جوڑ رہا، اور اس کے بعد اسم ہے اجرن اور پھر ہے کبیرن۔ تو اجرن کی DING نکرہ ہے، حالت رفع ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اور کبیرن نکرہ ہے، رفع ہے، واحد ہے، مذکر ہے۔ یہ تو دونوں آپس میں مل کے ایک مرکب بن گیا، یہ مرکب کا نام ہے مرکب توصیفی۔ تو یہ دونوں ہو گئے بڑا اجر، ٹھیک ہے الحمدللہ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ چلیے اب اور کوئی نیکسٹ اور کون پڑھیں گے؟ شکراً جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم۔ پڑھنا سے ہاں پڑھیے بیٹے۔ ذالکا اس میں اشارہ للبعید کے لیے ہے، اس میں اشارہ للبعید، ماشاء اللہ واحد مذکر کے لیے ہے، اور جی۔ عالم اس پر الف اسم ہے، معرفہ ہے، تو یہ الف لام اور تنوین نہیں ہے سر اس پہ، اس لیے یہ جی مضاف کے قابل ہے۔
تو یہ مضاف ہے، اور یہ الغیبی جو ہے مجرور ہے، حالت جر میں ہے، اس لیے یہ مضاف الیہ ہے سر۔ جی الغیبی مجرور ہے اس لیے حالت، یہ کیا ہو گیا؟ مرکب اضافی ہے سر یہ، مرکب اضافی دونوں مل کے عالم الغیبی، تو پہلا والا کیا بن جائے گا؟ مضاف بن جائے گا سر، مضاف، اور دوسرا والا مضاف الیہ۔ مضاف الیہ، ماشاء اللہ۔ آگے والشہادتی، واہ حرف عطف ہے سر، واو حرف عطف ہے، والشہادت العزیز، والشہادتی، یہ ڈنگ میں اگر دیکھیں گے تو یہ معرفہ ہے، اعرابی حالت کا اعرابی حالت نکیرہ ہے، نکیرہ ہے، اور اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ جر میں ہے سر، ہاں حالت جر میں ہے، اس کا نمبر کیا ہے؟ عدد عدد واحد ہے سر، واحد ہے، اور یہ تائے مربوطہ ہے، اس لیے یہ مؤنث ہے سر۔ مؤنث ہے، ماشاء اللہ۔ آگے العزیز بھی اسم ہے اور معرفہ ہے الف لام کے ساتھ، معرفہ ہے الف لام کے ساتھ، اور اعرابی حالت اس کی اعرابی حالت رفع میں ہے سر، حالت رفع ہے، عدد اور یہ واحد ہے، واحد ہے، اور یہ مذکر ہے سر، اس میں مذکر ہے، مؤنث کی کوئی چلیے بھی نشانی نہیں ہے۔ مؤنث کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ آگے ہے الرحیم، الرحیم بھی اسم ہے سر، الف لام جی کے ساتھ جی معرفہ ہے، اور معرفہ ہے، حالت رفع میں ہے سر یہ، حالت اور رفع ہے، واحد بھی ہے، واحد ہے، مذکر ہے، تو مذکر ہے، یہ العزیز الرحیم صفت ہے سر یہ، ہاں یہ دونوں بھی صفت ہے کہ خالی ایک صفت ہے؟ نہیں، العزیز الرحیم دونوں صفت ہے۔ دونوں صفت ہے، اچھا اب صفت آ گئی تو پھر یہ صفت کس کی ہے؟ موصوف اس کا اس کا موصوف یہ اب اس عالم شاباش، عالم جی الغیب اس کا موصوف بن سکتا ہے۔ ہاں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ڈی آئی این جی میں کون کون میچ ہو رہے؟ صفت یہ دونوں تو میچ ہو گئے، اور یہ دونوں ہم نے پہچان لیے کہ صفت بھی آ گئے۔ جی اب وہ شہادتی جو آیا، الشہادتی یہ معرفہ ہے، حالت کے اعتبار سے حالت جر آ گئی، اور واحد ہے، مؤنث ہے، تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس کے پہلے دیکھنا ہے الغیبی، الغیبی مضاف الیہ ہے، لیکن اس کی بھی اعرابی حالت حالت جر ہے۔ اس کے پہلا ہے مضاف، جی مضاف ڈی آئی این جی میں معرفہ، حالت رفع، واحد ہے، مذکر ہے۔ تو اب یہ صفات جو دونوں صفات ہے یہ کس کی ہو گئی؟ یہ عالم الغیب عالم، عالم الغیبی، عالموں کی صفت بن گئی، الحمدللہ۔ تو یہ دونوں مل کے کیا بن گیا؟ یہ مرکب توصیفی بن گیا سر۔ مرکب توصیفی، عالم ہو گیا موصوف، اور العزیز الرحیم ہو گیا صفت صفت۔ دو صفات آ گئی آج کا جی سبق، دو صفات بھی آ گئی، اور موصوف صفت کے بیچ میں کچھ بھی دوسرا بھی آ سکتا، یہ بھی آ گیا۔ جی جی الحمدللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ چلیے نیکسٹ، اب کون پڑھنے والے ہیں؟ جی سر، عائشہ۔ چلیے پڑھیے، ہاں پڑھیے، اللہ مع الصابرین، ہاں اللہ اس میں ہے کیا؟ رفعی حالت میں ہے، رفعی حالت میں ہے، رفع ہے، مذکر ہے، واحد ہے، معرفہ ہے کیا؟ نکیرہ، معرفہ معرفہ ہے، اعرابی حالت کیا ہے؟ پیش ہے، رفع، رفع، رفع ہے، نمبر عدد واحد ہے، واحد ہے، جنس مذکر مذکر ہے، مذکر
جی اس کے بعد ہے مع. مع یہ ظرف بھی بنتا ہے اور جو ہے الف لام بھی نہیں تنوین بھی نہیں تو یہ مضاف بنتا ہے. جی ظرف الصابرین. اچھا اچھا یہ مع کے ساتھ الف لام بھی لگتا کیا؟ نہیں سر ماں کے ساتھ نہیں رہتی. پھر یہ معرفہ ہی یہ ظرف ہے اور ظرف جو ہے وہ حرف جر کی طرح کام کرتا ہے. اس میں ظرف ہے اور یہ کام کرتا حرف جر کی طرح. ٹھیک ہے. جو ٹاپک مطلب جو ہم نے پڑھے سلیبس کے اندر اتنا ہی ہم ابھی فی الحال دیکھیں گے, اتنے ہی ناموں کو لے کے چلیں گے. تو یہ حرف جر کی طرح کام کرتا. جی آگے. جی اسی لیے الصابرین مجرور حالت میں ہے. الصابرین حالت جر میں. جر میں ہے. اس کا ڈی آئی این جی کیا کیا ہے؟ جی یہ جو ہے جری حالت میں ہے, معرفہ ہے, معرفہ ہے, اور جر میں ہے, جمع ہے, مذکر ہے. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرا کثیرا. تو یہ ہو گیا پورا اللہ مع الصابرین. اللہ صبر مع کرنے حرف والوں کے جر ساتھ. کی طرح کام کرتا ہے اور حرف جر اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جر میں لے کے جاتا ہے, اس میں مجرور کر دیتا. تو یہ اوریجنل کیا تھا؟ الصابرون. اس کی حالت تبدیل ہوئی تو بن گیا صابرین. الحمدللہ جزاک اللہ خیرا کثیرا. چلیے ابھی نیکسٹ پڑھیں گے. کون پڑھنے والے ہیں؟ سر جو سینٹینس کرتے اس کا ٹرانسلیشن بھی کرو نا تو سمجھ میں آئے. ٹرانسلیشن دیکھیے یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے نا چھوٹا سا, سورہ انفال آیت نمبر 10, یہ آپ نوٹ کرتے چلیے. اس کا ترجمہ آپ قرآن میں دیکھیں گے, قرآن میں دیکھ کے ترجمہ تفسیر دونوں بھی پڑھ لیجئے. ہم کو صرف ابھی گرامر دیکھنا ہے. اس کے بعد ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض. کون پڑھیں گے؟ سر میں کروں. جی الحمدللہ معرفہ ہے. الحمد الحمد رفع کی حالت میں ہے. حالت رفع ہے. واحد ہے واحد ہے اور مذکر ہے. مذکر ہے. واحد ہے اور مذکر ہے. چلیے الحمد ہو گیا. اس کے بعد للہ. لی حرف جر ہے. لی حرف جر ہے. ماشاءاللہ. اللہ معرفہ ہے. اللہ معرفہ ہے. جری حالت میں ہے. حالت جر ہے. سنگولر ہے. سنگولر ہے. مذکر ہے. مذکر ہے. مضاف الیہ ہو گیا ہوں. نہیں مضاف الیہ پہ جاری ہو گیا لی کی وجہ سے. مرکب جاری ہو گیا. یہ لام زیر لی اور یہ لفظ جلالہ حالت جر میں دونوں مل کے مرکب جاری ہو گیا. چلیے آگے. فاطری. یہ کیا ہے؟ سر یہ مضاف ہے. مضاف ہے. کیسا پہچانے آپ نے مضاف ہے؟ ال بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے. ال بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے, تو اس کو بولیں گے اخف کیا ہوا ہے اس میں. ہاں جی جری حالت میں ہے. حالت جر میں ہے. اس کے بعد اور نمبر واحد ہے کیا ہے اس کا؟ واحد ہے اور مذکر ہے. مذکر ہے. اس کے بعد ہے السماواتی. یہ معرفہ ہے. جری حالت میں ہے. معرفہ ہے الف لام کے ساتھ. حالت جر میں ہے. جر میں ہے. واحد ہے. تسنیہ ہے جمع ہے؟ جمع ہے. جمع ہے. مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مونس ہے. مؤنث ہے.
ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद वो हद पे अतफ है ना भाई? वाव हर्फ आतफ है। अब है अल अर्जी, मारिफा है, मारिफा है, जरी हालत में है, जर्री हालत में है, ये सिंगुलर है सिंगुलर है, और मुज़क्कर नहीं, ये मुन्नस है। हाँ। कोई निशानी है क्या इसकी? नहीं मुन्नस नहीं, नहीं है। मुज़क्कर। तो मोन्नस है तो क्यों मोन्नस रहेगी? अगर मोन्नस बनी तो ये समाई मुन्नस भी होती है ना सर? समाई मोन्नस भी होती, माशाल्लाह। तो DING हमने निकाल लिए, मारिफा है अलिफ लाम के साथ, हालत जर है, वाहिद है, और ये चलिए मोन्नस है। ठीक है, अब देखना है कि दो इस्म का आपस में कोई ताल्लुक है क्या। शुरुआत चाहेंगे अल्हम्दु लिल्लाही, उसके बाद है फातिर समावाती वल अर्जी। तो कोई इस्म है जो किसी से मिल रहा क्या? इसमें मुरक्कबात कौन से बन रहे? अभी तो लीला ही हो गया। लिल्ला ये हद पे जर हो, हाँ, लिल्लाही बन रहा, मुरक्कब है जारी। जारी। फातिर समावाती, ये मुरक्कब इजाफी हो गया ना सर? मुरक्कब इजाफी हो गया। ये मुजाफ और ये इजाफी नहीं। मुजाफ इलैही। और मुजाफ इलैही एक ही है या दो है? तो जिनमें अगर ये वाव आया ना सर बीच में तो ये नहीं हो सकता। हाँ, ये वाव जो है, वाव हरफ आतफ है, कंजंक्शन है, दो लफ्जों को या दो जुमलों को आपस में जोड़ के रखता। तो ये वाव ने जोड़ के रखा अस्समावाती और अल अर्जी की। अब इसकी एराबी हालत की हालत जर है और अल अर्जी की भी हालत जर है, तो ये भी हो गया मुजाफ इलैही, ये भी है मुजाफ इलैही, ये भी मुजाफ इलैही सेकंड सानी। तो ये मुजाफ हो गया और ये दो मुजाफ इलैही हो गए, फातिर समावाती वल अर्जी। ये तीनों मिलके हो गया मुरक्कब इजाफी। तो दो मुरक्कब आ गए, पहला मुरक्कब जारी और दूसरा है मुरक्कब इजाफी। और फातिरी जर में गया किसकी वजह से? लिल्लाही। और कोई मुरक्कब बन रहा क्या यहाँ पे? फातिर समावाती, सिफत मौसूफ। हाँ, दूसरे कोई बोलिए मत प्लीज। फातिर ये अल्लाह ही है, अल्लाह ही लफ्ज जलाला मारिफा है, हालत जर में है, वाहिद है, मुजक्कर है। फातिरी जो मुजाफ है ये भी अखफ किया हुआ मारिफा है, हालत जर में है, वाहिद है, मुजक्कर है। तो ये अल्लाह ही और फातिरी ये दोनों मिलके हो गया मुरक्कब तौसीफी। अल्लाह ताला मौसूफ और फातिरी समावाती पूरा मुरक्कब इजाफी मिलके बन गया सिफत, मौसूफ और सिफत। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। चलिए नेक्स्ट, और कौन है पढ़ने वाले? सर अलहम्दु क्या है सर? अलहम्दु क्या है सर? फिर अलहम्दु इसमें है, तो इसमें क्या बन रहा है इसमें? जुमला इसमें मुब्तदा बन जा रहा हुआ। मुब्तदा बन रहा है। हाँ जी, चलिए ये एक आयत है, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा। कौन पढ़ने वाले? सर ये फातिर समावात वल अर्ज ये पूरा सिफत हुआ। हाँ, ये पूरा मुरक्कब इजाफी बन के, मुरक्कब इजाफी बन रही सिफत अल्लाह ताला की। चलिए ये आयत है, कौन पढ़ने वाले हैं? सर उलाई का सर इसमें हाँ, इशारा है सर, इसमें इशारा है, माशाल्लाह। और ये सर जमा है सर, जमा है, और एराबी हालत इसकी मबनी है। मबनी है, एराबी हालत मबनी है। और सर ये लिल बईद के लिए सर, लिल बईद है, माशाल्लाह। और मुज़क्कर या मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है सर। मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए आता है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी, उसके बाद अलैहिम, अलैहिम में अलय हरफ जर है सर।
अला हर्फ जर है। और ठीक। हुम है सर, ये जमीर है, जमीर मुत्तसिल जमीर है। हाँ, जमीर है, मुत्तसिल है। तो मारिफा है या नकीरा है? मारिफा है सर ये, मारिफा है। और ये हालत जर में है सर, हालत जर में है। और ये सर जमा है गायब। जमा गायब के लिए है। गायब। और ये अलैहिम, ये दोनों मिलके एक मुरक्कब बन रहा, हाँ, दोनों मिलके मुरक्कब बन रहा। मुरक्कब है जारी। जारी। उसमें अला ये माशाअल्लाह। जार है, और हाँ। हुम मजरूर है। मजरूर है, माशाअल्लाह। सलावातुन, ये सर इसम है सर, इसमें है। और ये नकीरा इसम है सर, नकीरा है। और इसके रफा, ये रफा हालत में है सर, हालत के एतबार से रफा है। और ये जमा है सर, ये आतुन है, जमा है। हाँ। और ये मोन्नस है सर, मोन्नस है, माशाअल्लाह। तो सर DING पहचान ली। इसके बिना पर सर उलाई का मोन्नस हो जाएंगे क्या सर? नहीं नहीं नहीं, अच्छा सर, ठीक उलाई का मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। तो सलावातुन की वजह से ये मोन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ, इसलिए ये कंसिडर कर सकते हैं। नहीं नहीं, और सलावातुन सर जो ये है, हर्फ है। हाँ, ये हम तर्जुमे के एतबार से जब बाद में आगे चलेंगे, जुमला इस्मिया पढ़ेंगे, तो तब इसे ये समझ में आएगा। खाली उसको सुन लीजिए कि सलावातुन के मायने क्या है, रहमतें या बरकतें, सलामती, रहमतें या बरकतें। तो अलैहिम, उन पर, वो सब, उन पर हो सलावात बरकतें। तो ये मोन्नस नहीं है, किस पे बरकतें रहमतें नाजिल हो रही, ये उनके ताल्लुक से। तो ये मुज़क्कर और मोन्नस दोनों के लिए भी इस्तेमाल। चलिए आगे बढ़िए। जी, मिन सर ये हर्फ है। मिन हर्फ है। कौन सा हर्फ है? हर्फ जर है सर। हर्फ जर है, माशाअल्लाह। रब्बिहिम में रब जो है, रब्बू है सर, वो हाँ, अखफ किया हुआ इसम है सर, अखफ किया हुआ इसम, माशाअल्लाह। और इसकी एराबी हालत जर है। एराबी हालत जर है। इसलिए जर है क्योंकि मिन ने इसको जर्री हालत में कन्वर्ट किया, माशाअल्लाह। और ये सर वाहिद है सर, वाहिद है, और ये सर मुजक्कर है। मुज़क्कर है। और बहुत अच्छे। हुम सर ये जमीर है, मारफा है, मारफा है, जमीर है, जमीर मुत्तसिल जमीर है, ज़मीर मुत्तसिल है। और सर ये नंबर के हिसाब से जमा है गायब, जमा है गायब के लिए। गायब में। और सर एराबी हालत क्या एराबी है? हालत इसकी जर है सर, जर जर। एराबी हालत जर है। और क्या रहा सर इसमें? हाँ, और इस सर ये मुजक्कर है सर, मुज़क्कर है। सर ये अल्हम्दुलिल्लाह, मिन जज़ाकल्लाह। रब्बिहिम, यहाँ तक मुरक्कब जारी है। मिन रब्बी। हाँ सर, मिन रब्बी, सॉरी सॉरी, मिन ये रब्बी मुरक्कब मुरक्कब जारी है। जारी है सर। ये मिन जार है, और रब्बी मजरूर है, माशाअल्लाह। और ये रब्बिहिम ये मुरक्कब इजाफी है सर। मुरक्कब इजाफी है क्योंकि अखफ किया हुआ इसमें है, और उसके बाद वाला मुज़ाफ इलैहि हालत जर में है। मिन जर में रब्बी, माशाअल्लाह। रब्बी चलिए आगे। मुजाफ है, और हिम मुजाफ इलैह है। माशाअल्लाह। वा हर्फ अत्फ है। वाह हर्फ अत्फ है। रहमतुन, हाँ, ये सर इसम है, और ये सर इसम है। नकीरा इसम है सर, नकीरा है। नकीरा इसम है, जी। और हालत रफा में है सर, हालत रफा में है। और वाहिद है सर ये, वाहिद है। और जिन्स के एतबार से मोन्नस है, मरबूता की वजह से। मुअन्नस है, तामरबूता उसकी निशानी है। तो हर एक इसम का DING निकाल दिए। इसके अंदर से मुरक्कबात कितने मिले हमको? ये अलैहिम मुरक्कब जारी, मिन रब्बी मुरक्कब जारी, रब्बिहिम मुरक्कब इजाफी, व रहमतुन, फिर उसके बाद अलग अलग इसमें है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, माशाअल्लाह। आपका नाम बोलिए आप। सर आपका नाम?
जोहान सर, जोहान। जोहान सर, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। चलिए अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मगफिरतुन व रिज़्कुन करीमुन। कौन पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ते सर, हम पढ़े सर। हाँ हम पढ़ो। हाँ, लहुम लाम उर्फ जर है और आप पहले पढ़े क्या? नहीं नहीं सर, पहले पढ़ अभी पढ़ी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, लाम हर्फ जर है और हुम उसको जमीर मुत्तसिल जुड़ी हुई है, जिसकी वजह हाँ, से ये मुरक्कब जारी बन गया। मुरक्कबे जारी बना। जारी जी। माशाल्लाह। दरजातुन, ये जो नकेरा इसम है, नकीरा इसम है, वाहिद है, वाहिद है, और मोनस है, हाँ मोन्नस है, और नकेरा है। हाँ, नकेरा वाहिद और अदद में इस वाहिद है। एराबी हालत क्या है? एराबी मरफू है। एराबी मरफू है। जी, आगे। आगे इंद जो है हर्फ जर है, हाँ और नकेरा वाहिद है। हाँ, ये उसको छोड़ दो, हरफ जर बोलने के बाद खत्म, छोड़ देने का, आगे बढ़ना है। हरफ जर का काम क्या है? आने वाले इसम को, बाद आने वाले इसम को हालत जर में लेके जाता है। जर को ले आता है। और हाँ रब जो है हाँ इसम है, हाँ, इसमें है, मारिफा है। मारिफा है। क्यों मारिफा है? मारिफा इसलिए है कि वो रब है। नहीं, रब तो है, ग्रामर के एतबार से क्यों मारिफा है? रखे नाम रखे हुआ है ना। नहीं, इसमें देखिए ना, अलिफ लाम है ना तनवीन है, तो अखफ किया हुआ इसमें मुजाफ हो सकता है, इसलिए वो मारिफा है। अच्छा, ये हाँ मुजाफ हो सकता है, ये मारिफा है, ठीक है। हाँ जी। और वाहिद है, वाहिद है, मुजक्कर है, मुजक्कर है, रफा में जर में है। जर में है, हालत जर में है। जी, हाँ, इंद की वजह से वो जर होगा। इंदा की वजह से हालत जर हो गया। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो ये दोनों मिलके एक मुरक्कब बन गया। कौन सा मुरक्कब बना? मुरक्कब जारी बन गया। मुरक्कब जारी जारी बना। बन हाँ, जी। अब बनाइए रब्बिहिम। हाँ, आगे हिम अब है। हिम जो है हाँ, मुतसिल जमीर है। मुत्तसिल जमीर है। माशाल्लाह। और ये इंद की वजह से वो भी अपने जर बन गई। अच्छा, इंदा की वजह से जर में आई। जी, आगे। इसका वाहिद है, तस्निया है, जमा है? ये जमा है सर, ये जमा है। जमा है। मुजक्कर है कि मुअन्नस है? मुजक्कर है मुजक्कर है। जी। एराबी हालत क्या है? एराबी जर है, एराबी है हालत जर, जर है। जी, और तो ये ये रब्बी रब्बी हिम ये दोनों भी मिलके क्या बन गया? मुरक्कब जारी बना सर। नहीं, ये मुरक्कब इजाफी बना। अखफ किया हुआ इसम, उसके बाद आने वाला इसम हालत जर में है, तो ये इजाफी बना, मुरक्कब इजाफी इजाफी बना बनता। जी, जी। उसके बाद है व मगफिरतुन। वाव क्या है? जो है हर्फ अत्फ है। हाँ, हाँ, मगफिरतुन ये एक इसम है। इसमें है, कौन सा है? मारिफा है कि नकीरा है? नकीरा है, नकीरा है। नकीरा हाँ, है, रफा है, रफा है, रफा है, और मोनस है, मोन्नस है, वाहिद वाहिद है। जी। जी, आगे है और वाव। फिर से आया वाव। वाव हर्फ अत्फ है। वाव हर्फ अत्फ है। और रिस्कुन एक इसम है, इसमें है, नकीरा है, मारिफा है कि नकीरा? नकीरा। नकीरा है, नकीरा हाँ, है, और मरफू है, मरफू रफा है। है, और मुजक्कर है कि मुअन्नस है? ये है मुजक्कर है, मुजक्कर है। मुजक्कर है, और वाहिद है, वाहिद है। वाहिद है। चलिए, उसके बाद है और करीमुन। करीमुन भी इसम है। इसमें है, इसमें अपने नकीरा है, नकीरा है, नकीरा है, और मरफू है, मरफू है, वाहिद है, वाहिद है, और मुजक्कर है मुजक्कर है। जी।
अभी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। अब ये देखना है कि हमको कोई आपस में इसमें एक दूसरे से टकरा रहे क्या, एक दूसरे से किसी का ताल्लुक है क्या, मुरक्कब बन रही क्या। तो उससे पहले हम ये देखेंगे, दरजातुन को आपने बताया वाहिद है। नहीं नहीं सर, दर्जातुन वाहिद नहीं सर, जमा है वो। हाँ, जमा है, जमा अल्हम्दुलिल्लाह। है, जमा है। चलिए, तो आप देखिए कौन से इसम आपस में मिल रहे हैं, कौन से मुरक्कब बन रहे हैं। वो रिस्कुन करीम, रिस्कुन करीम, जो आपस में मिले, जो हाँ, मुरक्कब तौसीफी बन रहे सर। मुरक्कब तौसीफी बन रहे, माशाअल्लाह। तो इसमें मौसूफ क्या है और सिफत क्या है। इसमें मौसूफ रिस्क है और करीम हाँ, सिफत है। करीम सिफत है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। उसके पहले है व मगफिरतुन, इसका किसी से है क्या ताल्लुक। मगफिरतुन, ये दर्जातुन है, मगफिरतुन और दर्जातुन है किस। हाँ, ये मगफिरतुन और दर्जातुन, इसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है तो छोड़ दो। अब यहाँ पे और एक मुरक्कब कौन सा मिला था, रब्बिहिम। रब्बिहिम जो हाँ, मुजाफ, मुरक्कब इजाफी, मुजाफ मुजाफ इलैह। और इंदा रब्बी, ये जारी, मुरक्कब जारी। उससे पहले लहुम आपने बताए थे मुरक्कब जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। चलिए, अब इसके आगे का हम इंशाअल्लाह कल करेंगे। और जितने भी लोगों ने किए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किए, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। मैं ये जो 5 लोगों ने इजरा किए, एनालिसिस किए, ये 5 को मुबारकबादी देता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप बेहतरीन एनालिसिस कर रहे हो। और मैं आप सारों को, जो ये 5 को छोड़कर जो है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी लाइन पर अपने आप को डेवलप कीजिए। सुनिए, आ रही है मेरी आवाज, आ रही है? आ रहे सर। जी सर। तो मेहरबानी करके इसी तरह से हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, अल्लाह से बहुत दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें इल्म नाफिया अता फरमाए, हमें हिकमत अता फरमाए, हमें हिदायत दे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन अल्लाह आमीन आपके, सर, सुम्मा आमीन। हाँ, अल्लाह आपकी इसके आगे भी कुछ आयतें हैं, वो इंशाअल्लाह हम कल करेंगे। और आज जिन लोगों ने पढ़े वो नहीं पढ़ेंगे, कल दूसरे कोई और लोग पढ़ने वाले हैं इंशाअल्लाह, ताकि हर शख्स को मौका मिले पढ़ने का, सीखने का। जी, और बाकी के लोग तैयार रहेंगे कल पढ़ने के लिए। सर जी, सर ये जो लहुम मुरक्कबे जारी हुआ, जी, दरजातुन इंद, यहाँ एक बार फिर रब्बिहिम मुरक्कबे इजाफी, जी, मगफिरतुन क्या हुआ लहुम सर? मगफिरतुन, दरजातुन जो है लहुम यानी कि अभी हम जब मायने देखेंगे उसके तो समझ में आएगा। लहुम यानी उनके लिए, दरजातुन यानी कि दर्जात है, इंद रब्बिहिम उनके रब के पास, व मगफिरतुन यानी कि दर्जात है और मगफिरत है उनके रब के पास उनके लिए, व रिज़्कुन करीमुन और बेहतरीन रिस्क है, ऊंचा रिस्क है, बेहतरीन रिस्क है, आला रिस्क है। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ ग्रामर देखे, उसका DING निकाले, इसम की पहचान की है। तो जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, आज यहाँ पे रुकेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी मुर्गा देखिए इतने बच्चे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत मुबारक।